Good morning student. Today we are going to demonstrate you cloud and PowerPoint apparatus. As well हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल होता है. First we have to find out the theory of this apparatus. Lubricating oil derived from the petroleum usually contain dissolved paraffin waxes and other impurities जो जम जाते हैं. Asphalt है, resin है. These impurities tend to separate out of the oil at the lower temperatures. When petroleum oil is chilled under the specific conditions, paraffin waxes and other solidable material normally dissolved in the oil begins to separate out from the solution or oil in the form of minute crystals, causing the oil to become less transparent, cloudy and hazy in appearance, which is called cloud point. If the cooling is continuous, further the amount of the separating material increases and a stage is reached when the oil solidify and stop flowing. That is called pour point. तो इस apparatus से हम क्या कर रहे हैं बेटा? Cloud and pour point निकालने का काम कर रहे हैं. What is the definition of cloud point? The lowest temperature at which lubricating oil becomes cloudy and hazy in appearance is called cloud point. And what is the pour point? The lowest temperature at which oil just solidify and ceases to flow. Solidify होने के बाद में flow करना बंद कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम pour point बोलते हैं. Now, what is the significance to find out this cloud and pour point? The cloud and pour point indicate the suitability of lubricating oil, lubricant in cold conditions. Pour point determines the stability of lubricating oil for machine working at sub-zero temperature like refrigerator plants, aircraft engines. Pour point of a good lubricating oil should be low, otherwise it may causes jamming of the machine. Pour point is also important to establishing the lowest temperature at which the diesel or fuel is still sufficiently fluid to be pumped or transferred. The cloud point help in identifying the temperature at which separation of wax crystals occurs, which may clog the filter screens in the fuel tank. Now this is the complete apparatus. We are going one by one different parts के बारे में बता रहे हैं. यहाँ पे अपने पास में जैकेट बना हुआ है. ये जैकेट इंसुलेशन के लिए बना हुआ है. इसके अंदर यहाँ पे 4 ओपनिंग्स दी हुई हैं. ये जो 4 होल्स दिए हुए हैं, ये 4 तरह के जो ऑयल्स हैं उसको हम एक ही बार के अंदर जो क्लाउड एंड पोर पॉइंट निकाल सकते हैं. इसके लिए हमारे पास में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 होल्स दिए हुए हैं. बीच में जो ये होल दिया हुआ है वो थर्मामीटर के लिए दिया हुआ है. जो फ्रीजिंग मिक्सचर हम लोग अंदर की तरफ यूज करेंगे, वो जो फ्रीजिंग मिक्सचर हम लोग यूज करेंगे, उस फ्रीजिंग मिक्सचर के टेम्परेचर नोट करने के लिए ये सेंटर वाला होल जो है वो हमने दिया हुआ है. नाउ सबसे पहले फ्लैट बॉटम फ्लास्क की बात करते हैं. दिस इज अ फ्लैट बॉटम फ्लास्क. फ्लैट बॉटम फ्लास्क के अंदर दिस इज अ मेड अप ऑफ ग्लास से बना हुआ है. 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है और जो इसकी हाइट है दैट इज 12 सेंटीमीटर. इस फ्लैट बॉटम फ्लास्क के अंदर, बिकॉज ये फ्लैट है नीचे से, इसको फ्लैट बॉटम कहा जाता है. इसके ऊपर कॉर्क लगाया जाता है. 1 होल कॉर्क रखा है हमने इसके अंदर. ये जो कॉर्क लगाया है इसके ऊपर हमने क्या किया है, थर्मामीटर को सपोर्ट करके इसके अंदर थर्मामीटर को रखा है. नाउ इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, एयर जैकेट लगाते हैं. ये हमारे पास में एयर जैकेट है. रबर ट्यूबिंग की मदद से ये रबर ट्यूबिंग है बेटा. इस रबर ट्यूबिंग की मदद से जो फ्लैट बॉटम फ्लास्क होता है उसको इस एयर जैकेट के अंदर रखा जाता है. द ट्यूब इज सराउंडेड बाय द एयर जैकेट. ये ट्यूब जो होती है हमारे फ्लैट बॉटम फ्लास्क, इसको एयर जैकेट से हम सराउंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रबर ट्यूबिंग. नाउ कूलिंग बाथ. दिस इज अ कूलिंग बाथ. हमारे पास में इट कंसिस्ट द इंसुलेटिंग जैकेट. ये हमारे पास में इंसुलेटिंग जैकेट आ गया इसके चारों तरफ. इट मेड अप ऑफ ग्लास और कॉपर का बना हुआ रहता है. और इसी के अंदर हम क्या करते हैं, कूलिंग मिक्सचर भरते हैं. 2 थर्मामीटर हमने यूज किए हैं. पहला थर्मामीटर हमने फ्लास्क के ऊपर यूज किया है और दूसरा थर्मामीटर हम कहाँ रखते हैं, हम फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है उसके ऊपर थर्मामीटर रखते हैं. 2 थर्मामीटर्स वी विल यूज हियर. नाउ different freezing mixtures we have to use in this
एपरेटस, यहाँ पे डिफरेंट फिजिंग मिक्सचर्स यूज किए जाते हैं। अभी हमारे पास में हमने यहाँ पे वाटर लिया है। इस वाटर के अंदर हम क्या करेंगे, आइस को डाल देंगे। बिकॉज आज का जो टेम्परेचर है वो कम है, तो इसके अंदर आइस और वाटर से हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आइस एंड वाटर का मिक्सचर जो होता है वो सफिशिएंट होता है। यदि इससे लोअर टेम्परेचर करना होता है, जैसा मटका कुल्फी वाला करता है, वो NaCl के क्रिस्टल्स डालता है। तो NaCl के क्रिस्टल और आइस का मिक्सचर जब यूज करते हैं तो टेम्परेचर जो होता है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यदि आइस के साथ में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड मिला दिया जाता है तो टेम्परेचर जो है वो अप टू -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम किया जा सकता है। एंड जो हमारे पास में जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, जहाँ आइसक्रीम वगैरह आप लेने जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सॉलिड CO2 प्लस एसीटोन होता है, जहाँ पे अप टू -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर किया जा सकता है। आज का टेम्परेचर हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए। हमने जो ऑयल लिया है दैट इज अ कोकोनट ऑयल। इसका हम क्लाउड एंड पोर पॉइंट निकाल रहे हैं। इसका क्लाउड एंड पोर पॉइंट हम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, वाटर और आइस का मिक्सचर ले रहे हैं। इसके अंदर हम लोग आइस डालेंगे और वाटर हमने ले रखा है। ये फ्रीजिंग मिक्सचर हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं। हमने आइस क्यूब डाल दिए हैं, इसको ऊपर से दिखाएं, ये आइस क्यूब्स हमने डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर हम लोग ये जो हमारे पास में एक ही सैंपल हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ, ये सैंपल जो है हम लोगों का कोकोनट ऑयल है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ये हम इसके अंदर रख रहे हैं। इसको एयर जैकेट के अंदर रखना है विद द हेल्प ऑफ रबर ट्यूबिंग। रबर ट्यूबिंग की हेल्प से इसको हम क्या करेंगे, ये रबर ट्यूबिंग है, इसकी हेल्प से हम इसको एयर जैकेट के अंदर रखेंगे। दिस इज द एयर जैकेट जो इसको सपोर्ट, ये रबर ट्यूबिंग इसको क्या करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। नाउ इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो अब इसकी वर्किंग देख रहे हैं हम लोग कि हमने फर्स्ट सैंपल रखा है कोकोनट ऑयल। कितनी देर के अंदर इसके अंदर हैजी अपीयरेंस आएगी, जो इसका क्लाउड पॉइंट होएगा, हैजी और क्लाउडी अपीयरेंस जो इसका क्लाउड पॉइंट होगा। एंड उसके बाद में जब सीजेस टू फ्लो हो जाएगा दैट इज पोर पॉइंट। हर थोड़ी देर के अंदर हम लोगों को इसके अंदर चेक करना पड़ता है कि इसमें हैजी अपीयरेंस आना स्टार्ट, देखें ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। हैजी अपीयरेंस, क्लाउडी अपीयरेंस इसके अंदर आनी स्टार्ट हो गई है। यदि इफ यू सी इसके अंदर आपके पास देखोगे तो धीरे धीरे इसके अंदर ये झाग से बनने लगे हैं। ये क्लाउडी अपीयरेंस जो है इसके अंदर आने लगी है। अब ये थोड़ी सी देर के अंदर इसके अंदर अच्छी हैजी अपीयरेंस आ जाएगी, दैट इज इट्स क्लाउड पॉइंट। तो वी विल वेट फॉर सम टाइम। Now we will check again. Look here, this is a hazy appearance. यहाँ पे आपके पास में आप देखेंगे तो ये हैजी अपीयरेंस आना स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर एक झाग सा बादल सा बनने लगा है, जो क्या शो कर रहा है बेटा कि हैजी अपीयरेंस आ गई है। दिस इज अ क्लाउड पॉइंट। आफ्टर इसके बाद में हम लोग इसका क्या निकालेंगे, पोर पॉइंट, व्हेन इट इज सीजेस टू फ्लो। तो इसको वापस मैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख रही हूँ। आफ्टर थोड़े टाइम बाद हम वापस चेक करते हैं कि इसका पोर पॉइंट कितनी देर में आता है। Now after some time again we will check कि look here, this is a complete solidify। हमने थोड़ी देर ज़्यादा लगा दी है तो ये completely solidify हो गया है and ceases to flow। अब ये flow नहीं कर रहा है। What it shows? It shows pour point। तो हमारे पास में ये जो बिल्कुल ceases to flow हो गया है ऐसा नहीं, हमें कुछ देर के लिए ceases to flow होना चाहिए, 5 seconds के लिए सीधा रहना चाहिए, then flow करना चाहिए। That is called your pour point। तो हमें किसी भी lubricating oil का पोर पॉइंट एंड क्लाउड पॉइंट जो है पता होना चाहिए, ताकि उसको हमें टेम्परेचर कंडीशंस पता पड़े कि उसको कब यूज़ किया जाना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट योर क्लाउड एंड पोर पॉइंट apparatus। थैंक यू।